Morning class. Today we are continuing our chapter 5, that is basic geometrical ideas. Students, we have covered our some important topics that were points, line segment, rays, intersecting lines. Hope all the topics are clear to you very well. Now today two important topics are there. Yes, let us see what are these topics. Yes, another topic is collinear points. Okay, we will come to know about this collinear points and congruent lines. Okay, so yes, let us see what are collinear points and congruent lines. Now learn what collinear points are. 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line. As you can see in the figure, points A, B, C and D are collinear because only one line, L, passes through all of them. If the points do not lie on a line, they are called non-collinear points. In this figure, the points A, B, C, D are non-collinear. 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if they all pass through the same point. In the given figure, the lines L, M, N, etc. all pass through a common point, O. Such lines are said to be concurrent lines, and we say that they are concurrent at O. The point O is called the point of concurrency. Yes, students, hope all the important topics which are discussed here is clear to you by this video. Yes, let us summarize these points. First is collinear points. Students, what are collinear points? देखिए, 3 or more points, 3 या 3 से ज़्यादा in a plane, किसी भी plane में, बच्चे this is a plane, this board is a plane, this wall is a plane surface. तो क्या कहता है 3 or more points in a plane are said to be collinear. उन points को collinear कब कहा जाएगा? If अगर they all lie on the same line, अगर वो 3 और 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो देखिए here is a line L and P, Q, R, S are the 4 points here which are on the same line in this plane. Okay, so P, Q, R and S are the collinear points. Yes, what about non-collinear points? Opposite to the collinear. If the points do not lie on the line, अगर पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है, देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो उनको क्या कहा जाएगा बच्चे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो सी, हेयर इज अ लाइन एल, ए एंड बी आर ऑन द लाइन बट सी एंड डी पॉइंट्स नॉट ऑन द सेम लाइन, सो सी एंड डी आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, एक ही लाइन पे नहीं है. यस, now congruent lines, important topic, congruent lines. 3 or more lines, बच्चे यहाँ पे points थे 3 or more points. now congruent lines में 3 or more lines in a plane are said to be congruent if all of them pass through the same point. 3 या 3 से ज़्यादा लाइन एक प्लेन में होनी चाहिए. उनको कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? अगर वो सभी लाइन एक ही पॉइंट से निकलती हैं तो देखिए बच्चे, L इज़ अ लाइन, M इज़ अ लाइन, N इज़ अ लाइन. L भी कहाँ से पास हो रही है? O से. M भी किस में से पास हो रही है? O से. एंड N भी किस में से पास हो रही है? O से. तो it means that all the 3 lines passes from the same point O. So it means these lines are called congruent line because their intersecting point is same. Okay. Now students, we have done question number 1 to 4 of our exercise 5.1.
Now we will do our question number 5 related to those topics which have done right now. Yes, this is the figure of question number 5. First part, name the line segment that intersect at A. उन लाइन सेगमेंट्स के, नोट लाइन, उन लाइन सेगमेंट्स के नाम बताइए जो एक दूसरे को A पर कट करती हैं, मीन्स वो लाइन सेगमेंट जो A पर इंटरसेक्ट होती हैं. यस स्टूडेंट, दिस इज योर फिगर. तो कौन सी लाइन सेगमेंट ऐसी है जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं? तो देखिए EA, ये वाली लाइन सेगमेंट, चाहे AE बोलिए चाहे EA, ये लाइन सेगमेंट, AH ये लाइन सेगमेंट और AB ये लाइन सेगमेंट, ये तीनों ही लाइन सेगमेंट किस पे मिल रही हैं स्टूडेंट्स? A पे. सो आप कैसे लिखेंगे इस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट आप लिखेंगे कौन कौन से पेयर हैं, सॉरी कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं? AE, ऊपर कौन सा साइन बनाएंगे? ये वाला, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट. AE कोमा AH, ओके, कोमा AB. अगर मैं एरो लगा दूं तो ये लाइन बन जाएगी, बट मैं एरो नहीं लगाऊंगी बिकॉज मुझे लाइन सेगमेंट्स ढूंढनी है. तो ये तीनों ही लाइन सेगमेंट स्टूडेंट किस पे कट हो रही है, किस पे इंटरसेक्ट हो रही है? A पॉइंट पे. यस, नाउ सेकेंड पार्ट, नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट G. वो लाइन सेगमेंट्स बताइए जो G पर कट होती हैं, जो G पर एक दूसरे को काटती हैं. तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. यस, व्हाट अदर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन. इस फिगर में देखिए और कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स बनाई जा सकती हैं. तो स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट्स आर दोज लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स. ओके, तो दो पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो वो लाइन सेगमेंट बन जाती है. तो सी इन दिस फिगर, क्या और लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं? तो सो मैनी, मैं आपको कोई एक बताती हूँ. यस स्टूडेंट, दिस इज पॉइंट A. अगर मैं इस पॉइंट को C से मिला दूं, तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट को C से मिला दूं तो एक लाइन सेगमेंट AC बन गई. यस, और आप बताएंगे कि और लाइन सेगमेंट क्या क्या पॉसिबल है. ऐसे ही अगर मैं A को G से मिला दूं इस पॉइंट से, तो AG भी एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी. बाकी आप खुद ट्राई करेंगे. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AD एंड BE. बच्चे आपको बताना है जो AD एंड BE लाइन सेगमेंट है वो किस पॉइंट पे कट करती है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नेम. तो सी वेयर इज AD, दिस इज लाइन सेगमेंट AD एंड BE. वेयर इज BE, दिस इज लाइन सेगमेंट BE. तो AD और BE का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बताना है. तो यू विल डू योरसेल्फ. स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजॉइनिंग फिगर, साथ में जो फिगर दिया हुआ है इसको देखकर नेम 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. 4 पेयर्स मतलब 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है, मीन्स 2 लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो एक पेयर हो गया. ऐसे करके 4 पेयर आपको बताने हैं. तो 1 पेयर मैं आपको बताऊंगी, ऐसे ही आपको अदर 3 पेयर्स खुद फाइंड आउट करने हैं. तो सी दिस फिगर, मैं आपको 1 पेयर बताती हूँ लाइन का जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो देखिए बच्चे, AC इज अ लाइन, AC इज अ लाइन एंड FE इज अ लाइन. तो AC और FE एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो एक पेयर कौन सा हो गया? AC और FE. तो आप लिखेंगे लाइक दिस, AC कोमा FE, क्योंकि ये लाइन है तो ऊपर आप लगाएंगे लाइक दिस. ओके, तो ये 1 पेयर हो गया. अनदर पेयर आपको खुद लिखना है, आपको ऐसे करके 4 पेयर्स देने हैं. Yes, second part, name 4 collinear points. Earlier we discussed that what are collinear points? The points on the same line. तो 4 collinear points आपको बताने हैं. Yes, in this figure 4 collinear points are here. G, C, ये है C, D, ये वाला point D and H. These are 4 points and are on the same line. So G, C, D and H. G, C, D, H are the 4 collinear points.
यस, थर्ड पार्ट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे ना हो, ऐसे 3 पॉइंट्स देने हैं। तो सी, ऐसे 3 पॉइंट जो एक लाइन पे नहीं है बच्चे, तो वो जी सी ए हो सकते हैं, और आप अपनी तरफ से दे सकते हैं डी एच बी दे सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 1, 2 और 3 पॉइंट्स देने थे, बट ये तीनों एक लाइन पे नहीं है, सो दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यस, फोर्थ पार्ट, 3 कॉन्करेंट लाइन्स। बच्चे, आई हैव टोल्ड यू कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं, ऐसी 3 लाइन्स जो एक ही पॉइंट में से पास होती हैं, 3 लाइन्स विच हैव द सेम पासिंग पॉइंट। तो आपको ऐसी 3 लाइन्स बतानी है जिसका पासिंग पॉइंट सेम है। तो ऐसी 3 लाइन्स कौन कौन सी होंगी स्टूडेंट? ये देखिए, ए डी, ए सी और एफ ई। देखिए, ए सी, ए डी और एफ ई, तीनों का पॉइंट कॉमन कौन सा है? ए, तो दीज आर कॉन्करेंट लाइन्स। पर ए सी के ऊपर क्या लगाएंगे? एरो वाली लाइन, ऐसे ही ए डी पे एंड ऐसे ही एफ ई पे। फिफ्थ पार्ट, 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है। ऐसी 3 लाइन्स बताइए जो एक दूसरे को ए पॉइंट पे कट करती हैं। तो स्टूडेंट, अभी जस्ट डिस्कस किया था 3 कॉन्करेंट लाइन्स, ए सी, एफ ई एंड ए सी, एफ ई एंड ए डी। यस, एक दूसरे को किस पे कट कर रही है? ए पॉइंट पे। So students, today's homework is do question number 5 और 6 of exercise 5.1 in fair notebook। मैं फिर रिमाइंड करा रही हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पार्ट गलत हो सकता है तो पहले उसे प्रैक्टिस में कर लीजिए, मुझसे चेक कराइए, उसके बाद आप उसे फेयर में कीजिए, ओके। एंड फिगर्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन इन योर फेयर नोटबुक। एंड ऑल्सो स्टूडेंट, डू एग्जाम्पल्स 1 to 5 इन प्रैक्टिस नोटबुक। ये एग्जाम्पल्स आपको फेयर में करने की नीड नहीं है, बस आप 1 to 5 आप प्रैक्टिस नोटबुक में कीजिएगा। कोई डाउट आता है किसी एग्जाम्पल में तो आप मुझसे पूछिए, ओके।